that we are from Meerut. GCC में आया, फर्स्ट ईयर तो फुल मस्ती में गया है, लाइक इवेंट्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. मेरा मेन मोटिव ये था कि आई वांट टू चेंज माई सेल्फ कम्प्लीटली. मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. द ओनली रीजन शौर्य हैड फॉर मी टू कम टू GCC वाज कि GCC में ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है जो कहीं और नहीं. What all are the things which you did not went right? तुझे लगाया कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है या फिर ये I'm losing my motivation. करते भी जब मेरे को लगा, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को लगा कि दिस इज नॉट वर्किंग वेल, फुल डे मैं बिजी हूँ और उसके बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ. आई ड्रॉप्ड माय फर्स्ट इंटर्नशिप आफ्टर 2 months. Hi everybody, welcome to GCC podcast. This is Tushar and today we have Harsh, who is a very special guest and our student doing BBA entrepreneurship. He is graduating this year and has been placed at AIC Catalyst, one of the top incubation centers in the city of Jaipur, working on the sustainability space. So welcome to the podcast, Thank Harsh. you so much, sir. जल्दी से एक बार briefly run through करते हैं कि who is Harsh exactly and how did you grow up? Before you came to the college, what were you doing in school? Who is Harsh exactly as a person? I myself belong to a very civilized city, Meerut. You must know about it. So my parents belong to Meerut, and me and my brother have always been born and brought up to different places. So we have a cultural mixture in there. And मैं जैसा स्कूल में था मैं वैसे भी अभी हूँ. If I am speaking truthfully, like I am joyful, I am playful, I am living my life to the fullest right now. It's a hashtag YOLO, you live only once. But coming on to the academics part, I was a very average child. Like I'm not a top A kids or something like that. Fifth class tak I was like okay, I was a topper. Sixth से hard study शुरू हो गए and grades started. हाँ, मैंने give up कर दिया. Grades started dropping like 80, 70, 60 and so on. 60 पे thankfully अटक गया. उसके बाद मैंने give up नहीं किया कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. 60 के नीचे नहीं गया apparently. So it's always been 60 and 70% and all. And स्कूल्स के अंदर मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑल. मेरे को हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर बहुत मन करता था. आई ऑलवेज लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड आई ऑलवेज लाइक टू बी पार्ट ऑफ अ टीम एंड सम सॉर्ट ऑफ दैट. सो दैट्स हु आई एम अ टीम गाय. But why did you keep on shifting from one city to another? उसका क्या background है? Okay, so my father used to change the jobs a lot. So अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मेरे फादर ने 14 jobs change किए, including the recent one. So it has been a lot of shifting and all. So he used to shift more than us, and we used to shift a little bit less. So we have been to 3 or 4 places. Like I was born in Raigad. We have stayed in Raigad for a few years. I have completed my 4th class till there. Then we shifted on to Madhya Pradesh and Satna, and 1 year there. And then we came to Rajasthan. So for Rajasthan, we have been in Rajasthan for quite a while. It's almost 10 years we have been in Rajasthan. 5 years in Sikar, from 6th to 10th, and then in between 10th I shifted to Jaipur. So yeah, 4.5 years, almost 5 years in Jaipur right now. And I have completed my almost college. Now you're independent. Yeah, I am now independent. So going for my masters, so shifting again, rule of my life. But could you have learned this from your dad? Yeah, I learned this from my dad, and he has learned from his dad. So Achha, he also used to keep on shifting. Yeah, so my grandfather was in army. He fought in 1971 Pakistan war. So okay, and he used to also get shifted a lot. He used to get a lot of transfers. So my dad brings the whole South India and Bihar side with him. My mom brings the Punjabiness in my family. And that's how we grew. Very good यार. So जो घूमने फिरने वाला पार्ट है ना, most of the people that I talk to, या तो वो गवर्नमेंट बैकग्राउंड होता है या फिर वो आर्मी बैकग्राउंड होता है जो घूमते फिरते रहते हैं. Yeah, sure. तो उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब्स हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसफर्स, राइट? आपका एक जगह से काम खत्म हो गया, आपकी नीड नहीं है, यू विल गेट ट्रांसफर टू माय फादर. पर उसमें एक नुकसान भी है. नुकसान क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब में होते हो या फिर आर्मी में होते हो तो उनके ऑलरेडी सर्कल्स होते हैं कि ना हमारे सर्कल है, यहाँ ना दोस्त बन जाएंगे, उनसे मिलेंगे. बट व्हेन टॉकिंग अबाउट योर केस, कोई सर्कल नहीं होगा. So, क्या तुझे लगा कि अच्छी चीज थी, क्या तुझे लगी कि यार ये तो बहुत खराब है? मेरा एक डिस्कशन हुआ था विद वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ GCC ओनली, ऋषिका मैम. सो मैंने उनको कहा था कि आई हेट इट व्हेन पीपल आस्क मी वेयर आई एम फ्रॉम, बट शी ओपनड माय आई टू लाइक नहीं, दिस इज अ गुड थिंग. क्योंकि इमेजिन अ गाय जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक जगह निकाली है. एंड आई एम श्योर अगर यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर ना, तुझे पता नहीं होता जयपुर के बारे में. हाँ, सो बेसिक मेजरली लोग ऐसे होते हैं जो बोर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, उनसे पूछो भाई यहाँ पे क्या अच्छा है,
कुछ नहीं अच्छा है यार, घूमने की जगह है बस, हम कभी नहीं घूमे हम कभी नहीं घूमे। घूम फिर सकते हो And for me, it is like कि any person and anybody who says something about him or himself, like juniors के साथ होता है, but और networking में बहुत काम आता है कि तुम अलग अलग जगह से belong करते हो. If somebody is from Bihar and he gives me an accent or he tells me that हमारे बेगूसराय में तो ऐसा होता है, मेरे डैड के कोई कलीग, मेरे डैड के कोई छोटे भाई या मेरे ही कुछ वो निकल जाता है, and I'm like अरे यार वहाँ पे वो बहुत अच्छा मिलता है. ट्रू So and he went, सामने वाला पर्सन इंग्लिश से हिंदी में आ जाता है, लाइक अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, आप जानते हो क्या वहां पे आप रह चुके हो क्या? मैंने नहीं, मैं रहता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ. बट नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है आपका कोई ठिकाना नहीं है. यू आर अ बंजारा, यू आर अ बंजारा लाइक मी, आप बागी हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है. सो फिर एक जगह सिलेक्ट करनी पड़ती है. सो मी एंड माई ब्रदर बहुत जल्दी हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया था. लाइक माई मॉम एंड डैड दे बोथ बिलोंग टू मेरठ. सो ग्रैंडफादर भी इवेंचुअली मेरठ में ही सेटल हो गए थे, एंड माई मॉम तो हमेशा बॉर्न एंड बॉट अप इन मेरठ. सो हमने फिर बोलना शुरू कर दिया दैट वी आर फ्रॉम मेरठ. नाउ प्रॉब्लम दैट हमने मेरठ चूज कर लिया बिना सोचे समझे, इज लाइक मेरठ को लोग उससे पहले नहीं जानते थे, बिफोर बस्सी. सो अनुभव सिंह बस्सी ने जब से कहा है कि आई बिलोंग टू अ वेरी सिविलाइज्ड सिटी मेरठ, तब से लोगों को बहुत वो हुआ है कि यस मेरठ इज गैंगस्टर एंड ऑल दैट. सो है लॉस है कि तुम्हें एक जगह से अगर तुम अपने आप को सिचुएट कर लेते हो या बोल देते हो आई बिलोंग टू दिस प्लेस, हाँ तो वो स्टीरियोटाइप हो जाता है. हाँ स्टीरियोटाइप हो जाता है. पीपल जज यू लाइक दैट. तुम बिहारी बोल दो कि मैं बिहार से हूँ, दे विल ऑलवेज लाइक कि हाँ चाइल्ड लेबर या समथिंग. सो इट गोज लाइक दैट. आईएएस बनोगे या फिर जो स्टीरियोटाइप्स हैं आईएएस बनोगे, या फिर भाई तू मेरे को वो खिला दे बाटी, और वो बोलते हैं जो क्या का वो खिला दो. तो इट गोज लाइक दैट. तो स्टीरियोटाइप मैं मेरठ बोलता हूँ, लोग डर जाते हैं, दे लाइक कि भाई तुम्हारे पास तो कट्टा वट्टा. बट दोस्ती वाले जो पार्ट है उसमें डू यू थिंक कि इतने दोस्त नहीं बन पाए या लॉन्ग टर्म दोस्त नहीं है? हाँ, सो दैट वाज व्हाट आई फेल्ट ऑलवेज, लाइक जब तक आपके पास मोबाइल नहीं है आप कनेक्टेड नहीं है. मेरे अभी भी तो कनेक्टेड है अपने पूरे पुराने दोस्तों से. एग्जैक्टली माय पॉइंट. मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय. वी हैव नो कॉन्टैक्ट अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो मेरे जो बहुत ही पुराने दोस्त है लाइक फ्रॉम रायगढ़ एंड ऑल, वो मेरे से अभी भी कनेक्टेड है ड्यू टू माय पेरेंट्स. बट प्लेसेस लाइक सतना, सीकर, इनके दोस्त, इनके परिवारों के साथ होता हमारा कभी बॉन्ड बना नहीं, तो इनके साथ हमारा वो रिलेशनशिप नहीं रहा. नहीं बट इसमें रीजन क्या है? क्योंकि तू वहां पे बहुत कम टाइम के लिए था इसलिए बॉन्ड नहीं बना, या फिर तेरे पास उनको टच करने का रिसोर्स नहीं था? टच करने के रिसोर्सेज नहीं थे. बट अगर like होता if तो I can find somebody right now na, like 1 week ago somebody from my 4th class messaged me saying like हमारा एक वो चलता था कि he used to say Sharma and some sort of dialogues की मेरे राइमिंग करते हुए, एंड आई वाज लाइक कि करण पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, ऐसे करके मेरे भी थे. एंड ही जस्ट मैसेज्ड मी आउट ऑफ नोवेयर ऑन इंस्टाग्राम विद दैट. और मैंने जैसे ही पढ़ा आई वाज सो स्टोक्ड टू हैव हिम विद मी एंड कनेक्टेड विद मी. सो यस, वो एक है कि हाँ, अगर उस समय भी हमारे पास कुछ ऐसा चीज होता ना कि हम मोबाइल लिख के दे देते और हमें कनेक्टेड रहते, तो एक प्लेस छोड़ने के बाद कनेक्शन टूट जाता है. ओके दैट इज ट्रू. बट कितना अच्छा लगता होगा ना कोई रैंडम दोस्त इतने सालों बाद एक मैसेज कर रहा है. दैट वाज, आई वाज लाइक, मैं 2 मिनट के लिए ऐसे स्कूटी चलाते चलाते रुका. मैंने कहा अरे 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 एक सेकंड, एंड आई स्टार्टेड टाइपिंग माय जोक लाइक करण पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, तेरे बच्चे होंगे फेल. एंड हम दोनों ने फिर 1 घंटा से इस बारे में बात की है कि हमने क्यों बनाया था ये. सो दैट्स द थिंग. नाउ आई एम गेटिंग इनटू दैट एज, आई एम रियलाइजिंग कि जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हमारे दिन भी अच्छे हुआ करते थे. सो आई एम फाइनली गेटिंग इनटू दैट एज. तो दादाजी मोड में जा रहा है. हाँ, मैं दादाजी मोड में जा रहा हूँ. आई एम टर्निंग 21 डे आफ्टर टुमारो. सो अर्ली 20s हिट कर रहे हो तुझे. बट मुझे लगता है इससे ना एक चीज अच्छी हुई है, मतलब व्हाट आई ऑब्जर्व इन योर पर्सनालिटी इज, क्योंकि तू इतना घूमा है और तूने इतने लोगों से ब्रीफली मिला है, तो यू हैव बिकम वेरी गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स. या क्योंकि मुझे पता है इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स. यू आर वेरी जॉली, यू आर वेरी चीयरफुल, हैप्पी ऑल द टाइम. तो ये फायदा हुआ है क्या? ये फायदा है, ये समथिंग है व्हिच आई फ्लेक्स आल्सो. लाइक एक इंटरव्यू में, मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था फॉर माय फर्स्ट इंटर्नशिप, ही वेंट लाइक कि ये ऑफिस बड़ा क्लोज कॉम्पैक्ट है, सब लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट है, तुम कैसे मनाओगे अपने आप को यहाँ पे. एंड आई सेड सर आप मेरे को 2 दिन दे दीजिए. You don't keep me on internship, you call me for 2 days and then on 3rd day I will tell you कि आपको आपके बंदों के बारे में क्या नहीं पता था. Very good. And that's what happened. He kept me on internship and the first 2 days everybody came to me, said hi and वो मेरी बात हुई. तीसरे दिन तक सब लोग मेरे साथ बॉस को लेके कंप्लेन करने लग गए थे. तो 3rd day at the end when he asked me what do you know, मैंने कहा सर आइए प्लीज लेट्स गो, let's have a talk. So I then started telling him सर आपके बारे में ये परसेप्शन लोगों का, and he was like really? सर वो होता है
So एक तो वो बॉस हो गए, और दूसरा आई एम अ गाय जिसको पता है कि लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है. I met an investor once and he said that I am from Mathura and my first instinct was like कि मैं मेरठ से हूँ, hi. So Mathura and Meerut are very close, like Sikar and Jaipur, like that sort of thing. तो उनका वो हो गया कि अरे ये भी यूपी से है, तो कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं. People find people जो उनको समझ सके, जो उनकी भाषा समझ सके. That is true. Relatability आती है, अच्छे से जान पाते हैं. So all this interesting thing happened in your school life. फिर तुझे लगा कॉलेज करना है, तो कॉलेज के टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा था? Why did you decide कि यार मुझे थोड़ा फंकी सा कोर्स करना है, बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो वो क्यों आया दिमाग में? और फिर I will be very honest, मैंने 12th तक बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं बीबीए करने वाला हूँ. तूने क्या सोचा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा था. I was just, वो एक मेरा बहुत बड़ा फ्लॉट था कि मैंने सोचा ही नहीं. I was having my fun क्योंकि कोविड आ गया था. So by the 10th I give my 10th board exams. कोविड आ गया, मेरा एक एग्जाम वो कैंसिल हो गया था, आईपी का था. बहुत सारे बच्चे जो 2020 के जानते हैं. देन the main point is so 11th full online गई, 11th के एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए हमारे. देन 12th आधी ऑनलाइन गई एंड आधी ऑफलाइन गई. तो 12th वाज अ वेरी मिक्सचर ऑफ कि यार अभी 10वीं में थे, अभी 12वीं में आ गए और हमें पता नहीं अभी करना क्या है. तो वो 6 महीने मैंने सिर्फ कॉलेज स्कूल का संभालने में लग गया कि इसकी पढ़ाई क्या है, इसका क्या है. एंड बोर्ड्स हुए, एंड बोर्ड्स के बाद आई वाज लाइक don't know what to do. अब क्या करें, अब मुझे नहीं पता. I don't know what to do. So originally अगर कोई भी अगर छोटा भाई उसका कोई बड़ा भाई होता है, he looks up to him. And my first point was like कि शौर्य अगले कमरे में बैठा है, मैं अकेला क्यों परेशान हूँ. मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं क्या करना है. And he went like कि किस में इंटरेस्ट है. And like I said to you कि मेरा स्कूल में बहुत इंटरेस्ट होता था कुछ ऑर्गेनाइज करने का. I like to be a part of team. And he said ठीक है तू एंटरप्रेन्योरशिप करेगा. मैंने उसमें क्या होता है बोले जाके सर्च करो. आई सर्च फॉर 2 to 3 days and then I found out what is entrepreneurship, धंधा क्या होता है, like business क्या होता है, startups क्या होते हैं. And I got really curious कि ये कैसे काम करती हैं, how can I do that. And I guess that was the answer I gave to you on my first interview for GCC, right? And so I was like कि JCRC में जाऊंगा मैं, मेरे दोस्त उसी में जा रहे हैं. And my brother went like no, you will go to GCC. I'm why? You did your masters. I don't want to live in your shadow. That was the one major trauma of my childhood where from every school to every college we were like ki, if I happen to do something good, teacher would go like you're Shaurya's brother, right? I can understand. And that's what, and I was literally praying on my knees that please do not go in GCC. And they were like no GCC. Okay. And I gave my interview and it happened with you also. So the first thing was like I told you that my elder brother had suggested me to go to GCC and you were like who is your elder brother? I said Shaurya Sharma sir. Oh tu Shaurya ka chota bhai hai. I still remember that line ki English se seedha Hindi mein are tu Shaurya ka chota bhai hai kya. मैंने कहा yes sir. So that happens a lot. Shaurya is a brilliant kid. Like मेरे को उसके teachers ने भी खूब खाया है. And it has been always like कि people knew me by Shaurya. So that happened. And the only reason Shaurya had for me to come to GCC was कि GCC में ऐसा practical exposure मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता. And that is true. So my friends after completing this 3-year long journey they say to me यार तू तो कितने अच्छे अच्छे लोगों को जानता है, you are so into the startup world. यार हमें तो कॉलेज वाले 11 से 4 बैठाते हैं और उसके बाद एग्जाम करवा देते हैं. Like that's where GCC comes in. How did you take advantage of it? So तुझे पता था कि ऐसा एक कोर्स है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, तो जब तू आया था क्या दिमाग में लेकर आया था? क्या तूने नाउ व्हेन यू लुक बैक यार 3 साल हो गए मेरे कंप्लीट, तुझे क्या लगता है क्या कैसे तूने यूटिलाइज किया? और अगर कोई बच्चा आ रहा है कॉलेज शुरू कर रहा है उसको क्या देखना चाहिए कॉलेज शुरू करने से पहले? सो फॉर मी इट वाज लाइक कि पैसे कमाने. मेरा उस समय जो मेरे भी कंडीशंस थे मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है. आई वाज लाइक कि नहीं यार आई वांट टू अर्न मनी एंड आई वांट टू अर्न मनी फास्ट. एंड मैं जीसीसी में आया था एंड दैट while networking with everybody and talking with one of my classmates also, he was also like कि भाई I have talked to 100 of people here right now जो हमारे बैच के हैं on the very first day and you are the only one who said कि मेरे को पैसा कमाना है फटाफट. Indirect way, indirectly सबने कहा कि धंधा खोलना है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, and you were the only guy who told me that you have to earn money. I like that. So मेरा main motive ये था कि I want to change myself completely. मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैं ज़्यादा अंदर
इन्वॉल्व नहीं था, इकोसिस्टम के अंदर नहीं था स्टार्टअप के. सो GCEC हैव ट्रांसफॉर्म मी अ लॉट, राइट. जो बच्चे जो अभी रिसेंटली कॉलेजेस में आ रहे हैं और स्पेशली जो एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री चूज कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू से टू देम कि डोंट हेजिटेट एंड डोंट रश इन, राइट. आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू. लाइक मैं आया, मेरे पास एक बहुत बड़ा गोल था, पैसे कमाने. स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए थी मेरे पास कि मेरे को क्या करना है. अगर मैं वो फर्स्ट ईयर में कर लेता तो आई थिंक आई माइट बी इन अ मच बेटर पोजिशन राइट नाउ. आई माइट हैव स्टार्टेड माई ओन वो. एंड द मेन पार्ट इज दैट डोंट हेजिटेट टू फेल. दैट इज समथिंग आई डिड. मैंने दो स्टार्टअप्स के बारे में सोचा, तीन स्टार्टअप्स आइडियाज निकाले, मेंटोर्स से जाके पूछा, मेंटोर्स ने कहा नहीं यार हर्ष काम नहीं करेगा. एंड नहीं यार हर्ष काम नहीं करेगा के चक्कर में काम हुआ भी नहीं. तो मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स देयर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट के नहीं हो पाया. So surround yourself with people who challenge you. Surround yourself with people who would help you and say कि नहीं एक बार ट्राई तो कर, right? And you will do so. आपका एक बार स्टार्टअप अगर यार फेल भी हो गया तो क्या हुआ, पैसे ही लगे ना थोड़े से. एफर्ट और पैसा लगा थोड़ा. राइट, एफर्ट एंड पैसा. एफर्ट से तुम कुछ सीखे ही हो, दैट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू अ पैसा. करेक्ट. ये चीज मेरे को बहुत बाद में समझ आई कि एफर्ट्स बाद एक बार के लिए वेस्ट भी हो जाए तो बाद में पैसे के ही काम आएंगे. आई राइट नाउ लाइक बहुत सारे इवेंट्स मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक दे वर लकी फॉर मी. लाइक देयर इज JSEF, राइट. मैंने फर्स्ट ईयर में उसमें पार्टिसिपेट, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. एंड अचानक से बोला कि एक बंदा गायब है, आएगा. मैं ठीक है, मैं मजे के लिए आया था. आई फाउंड आउट हाउ इवेंट्स वर्क. टाई स्मैशअप फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, स्ट्रेट 3 years, JSEF 3 years. एंड तीनों सालों में मेरे को मेरी इंप्रूवमेंट ऐसे दिखती कि मैं हायरार्की में ऊपर ही गया हूँ. JSEF में फर्स्ट ईयर नॉर्मल वॉलंटियर, एकदम लो लेवल. सेकेंड ईयर में कोर टीम विद अक्षय एंड ऑल. एंड थर्ड ईयर में आई वाज इन द फाउंडिंग लाइक इन द स्ट्रेटेजिक मेकिंग डिसीजन कंपनी, सो विद यू, राइट. And same goes for Tie Smash Up. Like for first year I was just a normal volunteer, second year I was heading the logistics, and second year I was working with the logistic head, and third year I was handling the logistics with myself. Right, I was the major team part. So that's how things work. You do work, you do your efforts, and you get something. That's how it Good, works. but मुझे जो अच्छी चीज लगी ना वो ये लगी कि तूने कॉलेज में you came with certain expectation, but तूने एक्सप्लोर किया ढंग से. यार मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये मेरी कॉलिंग है. इवेंट्स इज माय कॉलिंग. एंड यू डिड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, एंड आई थिंक बहुत सारे और इवेंट्स तूने करे थे. और तू अच्छे पोजीशन पर, आई आल्सो रिमेंबर, एंड तक पहुंच गया था, दैट यू वर लीडिंग दोस इवेंट्स. सो वंस यू केम टू द कॉलेज, यू स्टार्टेड डूइंग दीस इवेंट्स. देन व्हाट डिड यू डिसाइड कि यार अब कॉलेज खत्म हो रहा है, सो कॉलेज के जो सबसे पहले दिन थे, आई मेट अ ग्रेट पर्सनालिटी, राहुल सिंघल सर. सो उनको देखा एंड आई वेंट लाइक यार ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड भी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को. अगर ऐसे लोग मिलेंगे ना मेरे को मजा आ जाएगा काम करने में. एंड दैट्स व्हाट आई वांट, मजा. सो मैंने सर से बात की. सर से बोल रहा है कि मैं तो अपनी एजेंसी चलाता हूँ एंड ऐसे ऐसे काम चलता है. मैं ओके सर, मैं पढ़ के आता हूँ इसके बारे में. I did a course for 2 months, and during that course, sir was also teaching us. So sir taught us for continuously 3 sems, right? That's almost 1.5 years. And during that time, I explored myself into operations during events, digital marketing in internships, and one more field. So I got into a data entry into an event, which was some sort of experience, but it was not very compelling, right? मैंने कहा यार ये क्लर्क वाला काम नहीं करता है. So that's how it worked कि मेरे को ये सब करते करते ही पता चला कि मेरे को क्या करना है. और to be honest मैं अभी भी confused हूँ क्योंकि मेरे को दोनों फील्ड्स ही इतनी पसंद है. Like events is something like मैंने बहुत किया है, जैसा आपने कहा बहुत किया है. Like these are the major two जो मैंने 3 साल लगातार किए हैं. Apart from that I get to meet the founder of Boat, Aman Gupta, which I thought I never would. So GCEC ने मेरे से ऐसी चीजें करवाई हैं, ऐसी चीजें ऐसे लोगों से मिलवाया है मेरे को जिनको मैं जानता ही नहीं था एग्जिस्टेड, एंड जिनको मैं जानता था एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे भी मेरे को था कि यार आई कैन नेवर मीट दैट गाय. आई मेट विद आई डिड एन इवेंट ऑफ D2C Insider. You only has sent the forms for it. So me, Sanvi, and one more girl, Chavi, I guess. We 3 filled the form and हम तीनों गए थे. पॉइंट था कि मेरे को एक टास्क हैंडल करना था. वहां पहुंचे, पता चला सब कुछ ही हैंडल करना है. तो दैट गाय केम इन, मैं सूट वूट में खड़ा हुआ हूँ, एंड ही वाज लाइक कि अच्छा तुम इतना सज के आए हो क्या? सर आपने कहा था ना ऐसा इवेंट है, तो आई ड्रेस्ड अप लाइक दैट. एंड उसके बाद पता चल रहा है मैं बैग्स भी संभाल रहा हूँ, मैं गेस्ट भी संभाल रहा हूँ, मैं उधर
Cast 24 का फाउंडर यहाँ बैठा हुआ है मेरे सामने और मैं ऐसे पीछे पीपीटी क्लिक कर रहा हूँ उसके लिए कि yes he is saying this, he is saying this, he is saying this. And so it was a very great experience. And PPT end भी मैंने लैपटॉप बंद किया and I just went like an hi sir, Harsh Sharma. So that's how things went. Networking कभी किसी ने सिखाई नहीं मुझे, मेरे को networking करनी आती थी अपने आप, वो again बहुत सारी जगह से हूँ मैं. So that was something, and I am a people's guy, right? So मेरे को लोग मिलते हैं, मैं लोगों से मिलता हूँ and they are like happy. It's a very good thing. वो मुझे लगता है तेरी USP है कि तू जब मिलता है ना, they naturally become friends with you. Right. So मेरे से लोग बोलते हैं इंटरव्यू में आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या है, and I'm like सर मैं आपको दोस्त बना सकता हूँ. So they went like अरे नहीं यार इतना नहीं. तो जबरदस्ती जैसा लग रहा है, जबरदस्ती तो. So they went like कि really you can make me a friend. I said give me few time na. I'm like in my current internship also, this is the first time I have taken so much time for getting them acquainted with me. Right. So it's been me almost 2 months, and now it's like yes. They are well acquainted with me, but for the first week it felt like कि यार well damn some competition. So these guys, so they had their group, so it sometimes it's really hard to enter a group. So like अगर 3 लोगों का पहले से कोई group बना हुआ है which is very strong, so it's really hard to make your space for yourself. But it's like अगर open area है आपके पास इतनी सारी जनता है, जाओ ना, कौन रोक रहा है? That is true. So इतने सब learnings तूने जब लिए और फिर तू गया job के लिए, you decided that you would want to work with AIC. Yes. How was that experience like? So I was finding like internship for the final year, and CV ma'am came up with the opportunity for Catalyst AIC, and she told just go for it, right? आप एक बार apply करके तो देखो, internship के लिए तो apply करो. And I went okay ma'am, and I applied for the internship. Then I studied about Catalyst AIC. I asked you about Catalyst AIC a little bit, and once I gave their interview, so their interview was also a unique experience for me, क्योंकि मेरे को क्या लगा कि experience में क्या ही पूछेंगे, like these are normal interviews, they would ask me these things. Their interview is all about me, nothing about my CV, nothing about what I have done. No, what have you learned from your college? Like तुम्हारे college में क्या पढ़ाते हैं? And that was something which struck me, and I was like, एक सेकंड सर मेरे को सोचने दो. So ये this is some type of questions तो कोई नहीं पूछता, and I was like very shocked कि ये क्यों पूछ रहे हैं. So है Catalyst AIC is in a new experience in itself. अभी Catalyst AIC जिन सेक्टर्स के अंदर काम करता है, उन सेक्टर्स के अंदर मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, like craft, textile, sustainability, impact driven startups, right? And so I'm learning about those startups more and more while उनके mentorship sessions होते हैं, वो लोग समझाते हैं कि हमारी strategy कैसी है, हमारे सेल स्ट्रेटेजी कैसी है, हमारे पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमने जो आपसे फंड लिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ये सब कैसे काम करता है. तो ये सारी चीजें अब समझ आ रही है मुझे. अब मैं उस इकोसिस्टम के लोगों से जुड़ रहा हूँ. सो लेट्स जस्ट से कि अगर जीसीसी में आने के बाद मेरे को स्टार्टअप इकोसिस्टम पता चला, तो इधर आने के बाद मेरे को स्टार्टअप इकोसिस्टम के लार्जर पार्ट को पता चल रहा है, राइट, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, स्कीम्स इन्वॉल्व होते हैं. ना आई फील लाइक आई हैव मूव्ड टू अ अपर हायरार्की. फर्स्ट आई वाज अ गाय like जो investors के पास जाता था with a startup. Now I am the guy who works with the investors. So that's a level up. So but how do you think जो तेरी learnings है यहाँ की, कौन-कौन सी learnings कैसे-कैसे align हुई है तेरे work experience से? So एक तो मेरे को ये events जो मिले हैं, ये GCC की वजह से मिले हैं. Like I didn't know about these events at all. ये events वैसे भी किसी को भी ऐसे बुला नहीं लेते हैं कि यार आप आ जाओ हमारे पास और हमारे पास काम कर लो. इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? सो वॉलंटियरिंग जो एक्सपीरियंस मिला वो इनसे मिला, राइट? सो दीज लर्निंग्स दैट इवेंट्स कैसे हैंडल होते हैं, एक अगर कोई इवेंट प्लान करना है तो वो प्लान कैसे होगा, राइट? आई हैव टू वर्क विद स्टार्टअप्स जो हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड है, तो उन स्टार्टअप्स के साथ वर्क करना, उनकी पिच डेक्स के अंदर देखना कि एवरीथिंग ऑलराइट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर पिच. ठीक है. सो पिचिंग इज समथिंग दैट हैज बीन टॉट टू जीसीसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप वालों को, बच्चों को तो ये था कि मिड टर्म है, पीपीटी बनवा दो, पिच करवा दो इनसे. द वेरी फर्स्ट मिड टर्म आई रिमेंबर आई आस्क्ड सर कि मैं क्या करूं, क्या पूछेंगे ये लोग, नॉर्मल एग्जाम होगा क्या? बी प्रिपेयर्ड. Just 2 words. He said, "Be prepared." And I was like, "What for? What?" Bole, for anything they ask you to do, because that's what they did. So I remember the second sem ka midterm tha, and Shishir sir, I guess your subject was also there, and Ankur sir, you all came together. You told us that you have to make a startup in one day. You have to make its traction. You have to make its business model. You have to
मेरे को हर चीज चाहिए उसके अंदर. That was it for me. Like, oh, I have to make a startup in one day, and that's what we do. Now it's a very normal thing for me. Now it's very normal. हाँ, so now it's like कि हर हैकाथॉन, हर आइडियाथॉन में आप जा रहे हैं, आपको एक रात के अंदर अंदर ऐसा स्टार्टअप बनाना है जो अगले दिन फंडिंग मिल जाए. I'm like, okay. And people take 1 month से 3 months, लोग 2 साल का स्टार्टअप बना के जा रहे हैं, and we were like कि हम एक दिन में बना के जा रहे हैं. So that was something very new to me, right? So these learning helped me a lot for pitching and pitch deck designing and all. Some skills जहाँ पे हमारे YLP की trainings भी काम आई थी, right? So the first 6 months for us for 3 months for YLP training, right? जिसके अंदर Excel सिखाया था, Word सिखाया था, documents और अपने आप को self branding and all. तो वो सारी चीजें अब काम आ रही हैं Catalyst AIC. So documentation is the main part of Catalyst AIC of my job role, right? I am an incubation associate intern. So that's what I have to do. I have to make documents. I have to make documents for each and everything that we are about to do, and that has happened, right? So that's how things were. So all the learnings जितनी भी मैंने अब तक ली है, वो सब काम आ रही है. Even with my internships, like not to say ऐसे, लेकिन मेरे अभी hard boss है नहीं, लेकिन my first internship was from a very hard boss, right? That guy was new himself in the company, and I also was new. So उनके पास खुद इतना सारा काम होता था, वो मेरे को काम नहीं दे पाते थे. Then I have to know कि मेरे को क्या काम करना है बिना बोले, and उसके अंदर भी mistakes and सब कुछ सही करना होता है, right? तो वो सब हो रहा था. I was feeling like a proper corporate labor type की मैं सुबह 9 बजे कॉलेज जा रहा हूँ, 12 बजे वहां से निकल रहा हूँ, 12:30 तक, 1:30 बजे तक आई हैव टू रीच 200 फीट बाईपास रोड. सो जो जयपुर के हैं उनको पता है यहाँ से 200 फीट बाईपास रोड कितना दूर है. 200 फीट बाईपास रोड पहुंचो, नो लंच नथिंग, काम करना शुरू. लंच करो 2-2:30 बजे के आसपास, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके, एंड देन अगेन रात को घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते हैं. किया क्या? कुछ नहीं. सो दैट्स अ टाइम जहाँ पे मेरे को बीच में ऐसा लगा था कि यार व्हाट आई एम डूइंग, am I doing something? क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं वहां पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ. एंड देन मेरे स्टडीज तो चल ही रहते. तो GCEC एज अ थिंग दैट आपको एक पल के लिए प्रेशर रहता भी नहीं है एकेडमिक्स का, और एक पल के लिए अचानक से आ जाएगा सारा, क्योंकि टीचर्स का तरीका बहुत फ्लुएंट है, राइट, पढ़ाने का. आपको पता नहीं चल रहा होता है कि उन्होंने आपको एक टॉपिक समझा दिया है, लाइक आपको ले लो या फिर अंकुश सर को ले लो. सो यू गाइज हैव दैट थिंग कि अंकुश सर पूछेंगे, अरे किसी को इसके बारे में पता है? नहीं पता, एक बार सर्च करो. उसके ऊपर फिर डिस्कशन हो रहा है. अब क्लास के अंदर आधे घंटे का 45 मिनट का एक डिस्कशन हो गया एक टॉपिक के ऊपर, सबको पता चल गया इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है. क्लास ओवर, पढ़ा चुके हैं. आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कांग्रेचुलेशंस. हमने कहा ओके, अब हमें जाके घर पे जाके सही में पढ़ना है कि इसकी थ्योरी क्या है, क्योंकि एग्जाम में वही लिखना पड़ता है, राइट. सो दैट्स द थिंग. लेकिन आपको एक बार किसी चीज का प्रैक्टिकल पता चल जाए, यू नो हाउ टू राइट द थ्योरी. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. लर्निंग्स बहुत काम में आती है. तो इसमें एक जो तूने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली ना कि भाई टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है. हाँ, क्योंकि एक्चुअली मुश्किल होता है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन. या सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर GCC स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स हु आर लार्जर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, ये टाइम मैनेजमेंट, हाउ डू यू थिंक वी शुड मैनेज टाइम, एंड कैसे टाइम निकाले जब ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है? यार एक दिन करके देखो ना. मैं फर्स्ट डे गया, मेरे को पता चल गया मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ. मैं अगर 15 मिनट का मोबाइल भी चला रहता ना, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया था बीच में. तो अभी भी इट्स लाइक कि मैं पहले अभी जब कॉलेज चल रहे थे, जब तक हमारा अभी सेशन खत्म नहीं हुआ था, तब तक आई वाज लाइक 9 to 12 कॉलेज. आई रीच होम, थोड़ा सा लंच किया, वर्क, काम पे जाओ, काम करके आओ. 6 बजे तक मैं काम पे वापस आ जाता हूँ घर पे. तो 6 बजे के बाद आई हैव 4 to 5 hours बिफोर आई स्लीप, राइट. 4 to 5 hours जिमिंग में लगा दिया, दोस्तों से भी मिल लिया थोड़ा बहुत, अपने जो भी है मतलब उन सब लोगों से बात कर लिया, ठीक है, सबको सेट कर दिया. लास्ट के 1 घंटा रखा अपने लिए. घर जाओ, बैठो. इफ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी, इफ यू वांट टू हैव रिलैक्सेशन हैव रिलैक्सेशन. जरूरी नहीं है कि आप डेली अपने आप को पुश कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू हैव टू. नाउ समवन डूइंग ACCA एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर यू गाइज प्रैक्टिकल एक्सपोजर अभी उतना नेसेसरी नहीं होगा जितना आपका एग्जाम क्लियर करना है, राइट. लाइक CMA एंड CFA वाले बच्चे हो गए. सो फॉर दीज गाइज दे हैव टू फोकस मोर ऑन स्टडीज रेदर देन प्रैक्टिकल एक्सपोजर. और एक बार के लिए यार हाँ ये मानना पड़ेगा कि सोशल लाइफ 2 मिनट के लिए बंद हो सकती है. दिस इज समथिंग मेरे को लगता है जेन अल्फा के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा कि यार सोशल लाइफ बंद कर दे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, राइट. माय ब्रदर सेज लाइक
सोशल लाइफ क्यों चाहिए तेरे को? मैं उससे लड़ता हूँ, मेरे को सोशल लाइफ चाहिए थोड़ी बहुत, लाइक 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन कोई तो ऐसा आदमी मिले ना, के लिए चाहिए हाँ, social कि life बस थोड़ी बैठ बहुत। के मैं उसके साथ 2-3 गालियां दे दूं एंड आई वाज लाइक कि सेट है, आज का दिन हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया, मैंने हर किसी को टाइम दे दिया अपनी उससे, राइट? तो जेन अल्फा के लिए और मुश्किल है कि सोशल लाइफ कैसे खत्म कर दे। 2 मिनट के लिए अगर करियर चाहिए तो सोशल लाइफ बंद करनी पड़ेगी। मतलब you have to compromise, it is just that हाँ, तुम्हें सो क्या प्रायोरिटी रखनी है। फॉर फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक कि जब स्टार्टिंग के 6 महीने थे, वी वर हैविंग YLP, सो वी वर गेटिंग एट 4 के बाद इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यार आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, अब क्या करेंगे, सब लोग घर जाते थे या फिर हैंग आउट करने लगते थे। फॉर मी इट वाज लाइक कि घर पहुंचो, चेंज करो, जिम जाओ, जिम से वापस आओ, फिर उसके बाद जो करना करो। सो राइट, यू हैव टू सेक्रीफाइस समवेयर। अब ऐसे तो मेरे दोस्तों से अगर मेरे बारे में पूछो, दे विल से अरे स्टक अप है यार, टीचर्स पेट है यार, ही विल गो एंड ही विल स्टडी। I have to sacrifice somewhere. हाँ, which is okay, which is I fair. have to sacrifice somewhere, guys. So उनको फिर बाद में मैं compensate करता हूँ, घर पे झूठ बोल के उनके साथ रात रात भर बाहर घूम रहा हूँ। So hackathon हो रही है, 12 बजे तक सारा, सॉरी 8 बजे तक सारा काम कर दिया, एक दोस्त IPL का मैच देखने गया हुआ है, दिस इज ऑफ GCC ओनली। सो मेरी टीम का लव मैच देखने गया हुआ है, मैंने और एक जूनियर है उसने बैठ के सारा काम कर लिया है, और जो हमारे जो गुड़गांव वाली ब्रांच से जो लड़का आया था, ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, राइट? सो ये सारा काम हो गया, अब क्या करना है, दोस्तों के पास चलते हैं, चलो। सो घर वालों को लग रहा है कि मैं GCC के कैंपस में सो रहा हूँ, मैं रात के 4 बजे रोड पे हूँ, काम हो रखा है, 1 बजे हमें सबमिशन करना था, 1 बजे सबमिट करके हम लोग मस्ती कर रहे हैं। दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम मिलता नहीं है। सो दिस इज समथिंग जो सारे जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, जो बोलते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, भाई कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ेगा। करके देखना आपका अगर ऐसा है कि यार 1 घंटा मेरे को मेरे सेल्फ के लिए चाहिए, नींद में से 1 घंटा निकाल लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों में से मत निकालो जो जरूरी है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए, राइट? ऐसे ही मेरा तो ऐसे ही चला है। तेरी काफी ऊपर नीचे रही है जर्नी, जितना मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बता कि व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू डिड नॉट वेंट राइट, तुझे लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, या फिर ये आई एम लूजिंग माय मोटिवेशन, एंड फिर तूने क्या किया? A lot of people don't know this, but I gave my 12th board exams once again, like for one subject only. Accountancy के लिए मैं RT आ गया था मेरा, और मेरे को समझ नहीं आया क्यों आया है। मैं रीचेकिंग के लिए दे रहा था, लेकिन रीचेकिंग हो नहीं पा रही थी, मेरे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, देयर वाज सम एरर, तो फिर मेरे को वो वापस से देना पड़ा एग्जाम, राइट? एंड दैट वाज द टाइम आई फेल्ट लाइक कि अरे यार, दिस इज समथिंग वेरी बिग, लाइक कि तुम 12th के बोर्ड के एग्जाम के अंदर फेल हो। और उस समय मेरे पे ये भी आया था यार, कोई कॉलेज लेगा कि नहीं लेगा। सो वो हैंडल कर रहा हूँ, ये हैंडल कर रहा हूँ कि क्या करना है, एक वो पार्ट हो गया। GCC में आया, फर्स्ट ईयर तो फुल मस्ती में गया है, लाइक इवेंट्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बन रहे हैं, इट्स एवरीथिंग गोइंग फाइन। सेकेंड ईयर से रियलिटी हिट्स हार्ड, राइट? कि अभी 2 साल ही बाकी है, 2 साल पता नहीं चलेंगे कहाँ जाएंगे। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वो इंटर्नशिप करो, ये सब करो। इंटर्नशिप करते करते भी जब मेरे को लगा, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को लगा कि दिस इज नॉट वर्किंग वेल, आई एम फुल डे में बिजी हूँ, और उसके बाद भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आई ड्रॉप माई फर्स्ट इंटर्नशिप आफ्टर 2 months, मेरे को नहीं जमा वो, मैंने ड्रॉप किया। 3-4 महीने के लिए एकदम खाली बैठा। मेरा जब प्रैक्टिकल्स हुए सेकंड सेम के, एंड दे आस्क्ड मी व्हाट डिड यू डू, तो आई टोल्ड देम कि सर फर्स्ट 2 months इंटर्नशिप, एंड देन दिस मंथ मैंने थोड़े से कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, और ये कोर्सेज अभी चल रहे हैं, इसमें से एक कंप्लीट हो गया, उसका सर्टिफिकेट एंड ऑल। उन्होंने कहा बाकी के टाइम क्या किया हर्ष? एंड द ओनली थिंग आई कुड से हॉलिडे एंजॉय की, और क्या किया? एंड सरप्राइजिंगली आई गॉट अ ए, सो दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि ओ, सच बोलने से भी काम चल रहा है यहाँ पे। सो दैट्स समथिंग कि हाँ, दे एक्सपेक्ट यू टू हैव सम फन, राइट? तो आप 6 महीने का कुछ लोग भर के ला रहे थे बच्चे की, अरे हमने ये सब कर दिया, एंड दे वर लाइक कि तुम्हें टाइम मिला अपने लिए, तुमने अपने लिए क्या किया? सो आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने लिए सारी चीजें टाइम पे निकाली है, और किया भी है। लेकिन ऐसा अभी बीच में भी हुआ था कि आफ्टर आई लेफ्ट दैट इंटर्नशिप देयर वाज अ होल 6 month gaps of no internship. Then I started again, then I worked with Ankur sir at EMS Academy. That was an experience in itself, right? वहाँ पे मतलब मैं अगर काम नहीं सीख पाया, तो मैं वहाँ पे मैं अपना पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत कुछ सीख गया। हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स हु आर हैंग्री, लाइक जिनको तुम कुछ कह भी नहीं सकते, राइट?
Correct. पेरेंट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स आके बच्चों के बारे में चिल्ला रहे हैं, बच्चे जो कि मेरे सामने ही मस्ती करते हैं, राइट। और तुम्हें पता है बस बच्चा ही है बच्चे में ही दिक्कत Culprit है, राइट। बच्चा इतना इनोसेंट है नहीं जितना माँ बाप को लगता है, लेकिन यू कांट से दैट टू योर पेरेंट्स, राइट। True. उनको हैंडल करो, अपने गुस्से को खुद हैंडल करो। सो मेरे फर्स्ट 3 सेमेस्टर के लिए मैंने डाला था कि आई हैव एंगर इश्यूज, राइट। मैं कभी कभी फट जाता हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं फटता हूँ, तो मेरा ऐसे ही चलता है। एंड दैट्स समथिंग वेयर अंकुर सर एंड हिज इंटर्नशिप हेल्प मी। ही वाज लाइक कि देखते हैं कितनी देर तक झेलोगे तुम पेरेंट्स को, करेक्ट। तो वैसे काम चलता है। बट या मेरे को या लेकिन ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि मैं डिप्रेस हो गया, विच इज गुड थिंग ना कि वो नहीं आया। हाँ मेरे को नहीं लगा। लोग बोलते हैं यार मैं डिप्रेस हो गया, मैंने कहा यार डिप्रेस तो क्या, प्रॉब्लम्स है, दिस इज लाइफ, राइट। दिस इज माय फादर। तो मैं म्यूजिक को बहुत फील करता हूँ। माय फादर हैज अ फेवरेट सॉन्ग ऑफ हिज कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, एंड दैट्स समथिंग लाइक आई लाइक। मैं सुन लेता हूँ, मेरा ठीक हो जाता है मूड, चलो चेंज होगी। सो दिस इज समथिंग सौरभ सर व्हेन ही टुक अवर फर्स्ट वाईएलपी सेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेएसीएफ एक्चुअली। तो मैंने इनका एक सेशन दिया था और दूसरे दिन का सेशन फिर मैं जेएसीएफ में आ गया था। और सौरभ सर के हम मैं एग्जैक्टली मेरा बैच तो दीवाना हो चुका है उस एक सेशन का, क्योंकि वहां पे सर ने पहली बार हम सबको समझाया था कि म्यूजिक तुम्हारी वाइब कैसे चेंज करता है, राइट। यू लिसन टू दिस टाइप ऑफ सॉन्ग इन मॉर्निंग, सॉन्ग की वाइब ऐसे है, आपकी वाइब ऐसे है, तो कैसे आपको कौन सा सॉन्ग किस टाइम पे कब पसंद आएगा। आप सुबह उठ रहे हो, आपका अलार्म का टिंग 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 वाला है, सुबह ऐसे शुरू होती है, आप उठ रहे हो ट्रर करके, दैट इज ट्रू, ट्रॉमेटाइजिंग ट्रॉमेटाइजिंग। लाइक आईफोन वाले तो बेचारे अरे रे ट्रन ट्रन, तो वो सैमसंग वाले फिर भी सही है, प्यार से उठाते हैं, तो आईफोन वाले तो बेचारे डन 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 करके बजता है। तो सौरभ सर ने वो चीज सिखाई थी, तो व्हिच आई वेल ऑलरेडी फेल्ट टू हिम अ लॉट। मैंने उनके बाद उनको कन्फेस भी किया था कि सर दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में किसी प्रोफेशनल ने कहा है मुझे कि भाई तू म्यूजिक फील करता है और ये अच्छी बात है। तो बोले बी हैप्पी, गुड फॉर यू। बट गुड, योर लाइफ इन कॉलेज हैज बीन वेरी कलरफुल। बहुत सारी चीजें तूने करी है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मुझे लग रहा है तेरी में भी पर्सनली बहुत ग्रोथ हुई है, राइट। एवरीबडी आई हैव टॉक्ड टू, सीनियर्स, जूनियर्स, माय बैच पीपल, कहीं ना कहीं everybody who has entered GCEC has transformed himself a bit in one way or another। पर्सनालिटी की बेसिस पे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गए, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हो गए, बिट्रेयल्स खाए, कुछ भी किया, जो भी हुआ तुम्हारा कॉलेज एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि तुम अपने बच्चों को बैठ के बता सकते हो कि भाई कॉलेज में ये सब हो गया था, तुम्हें पता क्या है। लेट नाइट्स काम करना, अभी IIT की ट्रिप हुई थी, सो इट्स लाइक कि हम सिर्फ मजे कर रहे हैं, हम मजे के साथ सीख भी रहे हैं। IIT रुड़की की एक ऐसी ट्रिप जो अभी रिसेंटली हुई थी, which combines the fun and working together perfectly। आप IIT रुड़की जाओ, रात के 3-3, 4-4 बजे तक सब लोग जग रहे होते हैं, राइट। बच्चों का दिन शुरू तब होता है क्योंकि पूरे दिन वो पढ़े हैं, पढ़ने के बाद वो लोग फिर अब मजे कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट डे दे आर अगेन रेडी फॉर 7 AM क्लासेस, राइट। वो लाइफ हमने 4 दिन जी, हम में से आधी की तबीयत खराब हो गई यार। रात के 4-4, 5-5 बजे तक PPT पे काम कर रहे हैं, कैंपस घूम रहे हैं, मजे मार रहे हैं, पूरे दिन अटेंड कर रहे हैं इवेंट्स को, खाना मेस का पसंद नहीं आ रहा है तो स्टॉल्स का खा रहे हैं, ठीक है, पैसे पे पैसे उड़ रहे हैं, 2 दिन के अंदर 5,000 रुपए उड़ चुके हैं तुम्हारे ऑलरेडी। बट दैट इज द हसल। हाँ, दैट इज द हसल, राइट। कि वो लेट नाइट हसल में ही इतना मजा आ जाता है कि गाना बज रहा है, सब लोग सीरियस मोड में बैठ के लैपटॉप पे लगे हुए हैं, लेकिन गाना क्या बज रहा है, एक सैड सॉन्ग बज रहा था, कोई आई गेस डिप्रेस ब्रेकअप सॉन्ग बज रहा था, उस पे सब लोग वाइब कर रहे हैं और सब लोग अपने काम में लगे पड़े हैं, ऐसे काम चल रहा है। पीपल आर लाफिंग देयर, वाइबिंग देयर, रात के 3-3, 4-4 बजे तक जैमिंग सेशंस हो रहे हैं, तुम 5-6 बजे जाके सो रहे हो या नहीं भी सो रहे हो, रात सुबह के 8 बजे तुम लोग रेडी हो सेशन लेने के लिए। बट गुड, दैट इज हाउ लाइफ इज, हसल करना पड़ेगा। But lovely talking to you. काफी सारी चीजें पता चली। Thank you so much. For all the other interesting podcasts, you can keep joining the channel GCC and you can subscribe for more interesting conversations. Thank you.